দিকে দিকে চলছে মন্দির, মসজিদ, গির্জায়, কোথাও বা ঘন্টা বাজছে, আর কোথাও বা সেই আজানের সুরে বর্ষবরণকে বরণ করে নিচ্ছে। আর প্রতিটি কালীবাড়ি, প্রতিটি তীর্থস্থানে শুধু ভক্তদের ভিড়। বছরটা যেন ভালো কাটুক। আমাদের প্রথম আলো বার্তার পর্দার চ্যানেলে সমস্ত লক্ষ লক্ষ দর্শকদের জানাই আজ বছরের প্রথমে সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং শুভ কামনা। ভালো থাকবেন। আর একটা কথা প্রতিজ্ঞা করুন আজকের দিনে, বছরের প্রথম দিনে, যে কাউকে কাটমানি খেতে দেবো না। 2 নম্বর, সেই কংক্রিটের জঙ্গল বানাতে দেবো না, পুকুর বোঝাতে দেবো না। হ্যাঁ, এইসব প্রতিজ্ঞাগুলো করুন বছরের প্রথম দিনে। আজকে আপনাদের প্রথমে আমি শুরু করছি বছরের প্রথম দিনে সুন্দর একটা ভিডিও ভাইরাল, ভীষণভাবে ভাইরাল হয়েছে। সেই ভিডিও আপনাদের উপহার দিচ্ছি প্রথম আলো বার্তার পর্দা থেকে। হয়েছেটা কি জানেন? ভীষণভাবে ভাইরাল, হয়তো সবার কাছে গেছে। একটা বাঘ কোনো একটা গ্রামে সেই পাতকুয়োয় পড়ে গেছে। একটা কথায় আছে না, যে বাঘ যখন কাদায় পড়ে তখন সে সবার সাথেই থাকে। আজকে সেটা বোঝা গেল বছরের প্রথম দিনে। সেই ভিডিও আপনাদের দেখাচ্ছি, যদিও সেই ভিডিওটা আপনারা সত্যতা যাচাই করে নিন। একটা গ্রামে বিরাট পাতকুয়া ছিল, সেখানে একটা চিতা বাঘ পড়ে গেছিল। আর গ্রামের লোকেরা সেই চিতা বাঘটাকে উদ্ধার করার জন্য বাঁশ লাগালো এবং তলায় একটা বালতি দিল যাতে চিতা বাঘটা উঠতে পারে। অথচ চিতা বাঘটা যখন উঠল কুয়োর উপরে, ঠিক বাঁশের ওখান থেকে চিতা বাঘের ভীষণ ওয়েট, সেই ওয়েটে যারা সাহায্য করছিল চিতা বাঘটাকে তোলবার জন্য, সেই বাঘ এবং সেখানকার লোকেরা একসাথে পাতকুয়োয় পড়ল। অথচ চিতা বাঘটি বুঝতে পেরেছিল যে আমি বিপদের মাঝে আছি। তখন কিন্তু সে কাউকে থাবা বসায়নি। সে তখন তার হাত পায়ের নখ দিয়ে কোনো প্রকারে সেই পাতকুয়োয় উঠে গেল। সুন্দর দৃশ্য, একদম ভাইরাল ভিডিও। সেই ভিডিও আমরা সত্যতা যাচাই করে নিই। আজকে বছরের প্রথম দিনে সুন্দর একটা উপহার দিচ্ছি আমাদের পর্দায়। এশাইয়ার থেকে নিস্তার পেল না অন্ধ সেই মা, বৃদ্ধা মা আর অন্ধ ছেলে। যে ছেলে তার বৃদ্ধা মাকে, দুজনেই অন্ধ, অথচ সেই নদিয়াতে এই ঘটনা ঘটেছে। নদিয়াতে আমাদের প্রথম আলো বার্তার প্রতিনিধি সেই দুর্মূল্য চিত্র তুলে আনলো আপনাদের জন্য, এসআইআরের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য, ভিডিওদের জন্য, বিএলওদের জন্য। সেই ছবিটি জানেন? ছেলে অন্ধ আর মা বৃদ্ধা। ছেলে ভ্যান রিক্সা চালিয়ে মাকে নিয়ে আসছে ভিডিওর কাছে, কারণ তাদের হিয়ারিং এর জন্য। অবাক কাণ্ড। তাহলে বিএলওদের সেই বৃদ্ধ বয়স, যাদের 80-85 বছর বয়স, কারণ ভোটের সময় তো তাদের বাড়িতে গিয়ে ভোট করিয়েছিল, তাহলে এই সময়তে হিয়ারিংটা কেন তাদের বাড়িতে হচ্ছে না? যাদের 80 বছর 85 বছর বয়স, অন্ধ, যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ, এই প্রশ্নটা বছরের প্রথম দিনে নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশ্যে আমরা প্রথম আলো বার্তা জিজ্ঞাসা করছি। ভোটের সময় তো ভোট নেওয়ার জন্য আপনারা সেই নির্বাচন কমিশন ঠিক করে বাড়িতে গিয়ে 80-85 বছর মানুষদের ভোট নেয়,
কিন্তু এই সময় হিয়ারিং এর সময় কেন বাড়িতে বাড়িতে আসছে না? আর সেই দৃশ্য দেখাবো বছরের প্রথম দিনে, দুর্মূল্য দৃশ্য যেটা আমাদের প্রতিনিধি তুলে আনলো নদিয়া জেলা থেকে। দেখুন সেই দৃশ্য, যে ছেলে অন্ধ, মা অন্ধ, মার বয়স হয়েছে, ভ্যান রিক্সা করে চালিয়ে আসছে নদিয়ার ভিডিও অফিসের সামনে। সরাসরি দেখুন সেই দৃশ্য আমাদের। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আপনাদের হয়ে গেছে। এইবার দেখাচ্ছি দেখুন, কলকাতাতে এলো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি ভোরবেলায়, আর সেখান থেকে চলে এলো কলকাতায় বিজেপি সদর দপ্তরে, অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টির সদর দপ্তরে এলো অমিত শাহজি। আর সেখানে একটা প্রেস মিট করলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আমাদের প্রথম আলো বার্তার পর্দার প্রতিনিধি সরাসরি চলে গেছিল কলকাতা সেই সদর দপ্তরে বিজেপি। সেখানে অমিত শাহ আমাদের ক্যামেরার পর্দায় কি বলল সরাসরি শোনো। प्रेस वार्ता में मनपूर्वक स्वागत है। आज 30 दिसंबर का दिन है। हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का दिन है। आज ही के दिन 1943 में बंगाल की भूमि के सुपुत्र और देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आजाद भारत का झंडा फहराने का काम किया था। तो एक प्रकार से हमारे आजादी के संग्राम का ये बहुत महत्वपूर्ण मकाम था। और इसके कई साल बाद, 8 दशक बाद, आज 30 दिसंबर को जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो बंगाल के लिए भी आज से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। अप्रैल में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प बंगाल में जहां पर भी जाते हैं वहां दिखाई पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करना चाहते हैं कि मोदी जी में के नेतृत्व में
बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण, जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, देश भर में जहां जहां एनडीए सरकारें हैं, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। और इस सब के साथ साथ एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। और विवेकानंद जी, बंकिम बाबू और गुरुवर टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का बंगाल बनाने का हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे। और आज मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बंग भूमि बहुत पवित्र और बहुत मायने रखने वाली है, क्योंकि हमारी स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, भारतीय जनसंघ की स्थापना यही बंग भूमि के बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका अनुकरण भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सिद्धांतों के अंदर किया है। मित्रों, आज जब मैं कह रहा हूं कि इस बार 26 के बंगाल के विधानसभा चुनाव में बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, इसका मजबूत आधार भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं आपको 2014 से 2024 तक के चुनाव के यात्रा के परिणामों को बताना चाहता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें 17% वोट मिले थे और 2 सीटें मिली। मेरी बात जरा सभी पत्रकार बंधु ध्यान से सुने। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली। और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। और इसका नतीजा देखिए, कांग्रेस, जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग जीरो पर पहुंच गई। और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया और हमने मुख्य विपक्ष का स्थान प्राप्त किया। आज शुभेंदु जी मेरे साथ यहां पर बैठे हैं, वो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं। 24 के चुनाव में भी
हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12% सीट प्राप्त की, 12 सीटें प्राप्त की और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मित्रों, ये 24 से अब तक का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभांकर सिद्ध हुआ है। 24 में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। 24 के चुनाव में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की भाजपा की और एनडीए की सरकार बनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर कर बैठी है। मित्रों, जहां पर भी बंगाल में जाते हैं, पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती हैं। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। मगर ये लंबा नहीं चलेगा। बंगाल की जनता अब जान गई है और इसके खिलाफ लामबंद भी हो रही है। और मुझे मालूम है अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का अब मामला रहा है। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। घुसपैठ के अलावे भ्रष्टाचार से पूरी बंगाल की जनता त्रस्त है। रोजवेली चिटफंड घोटाला, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर नियम का भर्ती का घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन पीडीएस का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला, इतने सारे घोटाले हैं कि मैं पूरा लिस्ट पढ़ूंगा तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा हिस्सा ही उसमें चला जाएगा। अब क्या ममता बनर्जी इस बात का जवाब दे सकती है
कि आपके मंत्रियों के ठिकाने पर से 27 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनते गिनते नोट गिनने की मशीन भी गर्म होकर बंद हो जाती है। बंगाल जैसे गरीब राज्य के अंदर 27 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ये राशि मिल रही है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पार्थो चैटर्जी जेल में जाते हैं, ज्योति प्रिय मलिक जेल में जाते हैं, अनुव्रत मंडल जेल में जाते हैं, जीवन कृष्ण शाह जेल में जाते हैं, माणिक भट्टाचार्य जेल में जाते हैं, चंद्रनाथ सिन्हा जेल में जाते हैं, परेश पाल जेल में जाते हैं, कुंतल घोष जेल में जाते हैं, फिरहाद हकीम वो भी आरोपी बनाए जाते हैं, शोभन चैटर्जी आरोपी बनाए जाते हैं, कुणाल घोष 3 साल जेल में रहकर आते हैं, और आप कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं हो गया, हो रहा है। आप आंख मूंद लिए ही हो भ्रष्टाचार के लिए, मगर बंगाल की जनता अपनी आंख बंद कर कर नहीं बैठी है। गरीब बंगाल की जनता के अधिकार का पैसा आपकी कैडर की भेंट चढ़ रहा है, आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है, और अधिकृत रूप से कहा जाता है कि महिलाएं 7 बजे के बाद अपने हॉस्टल और घर से न निकले। हम कौन से जमाने में जी रहे, मुगल काल में जी रहे हैं क्या? ममता जी, ये आजाद भारत, यहां माताओं बहनों को पूरा दिन जब इनकी मर्जी हो, जब इनको काम हो, घर के बाहर निकलने की सुरक्षा प्रदान करना ये हमारा संवैधानिक दायित्व है, जो देने में आपकी सरकार विफल गई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, संदेश खाली का मामला हो, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, साउथ कॉलेज लॉ कॉलेज का मामला हो, हर जगह बेटियां असुरक्षित हैं, और ढेर सारे लोग और ढेर सारी माताएं बहनें ये अत्याचार से तंग आ चुकी है, असुरक्षा से तंग आ चुकी, वो भी राह देख रही है कि कब वोट देने का अधिकार आए और हम इन निकम्मी तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटा दें। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। यहां तक इंतहा कर दी, यहां तक कि पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर चर्चा होती है। बंकिम बाबू ने रचे हुए वंदे मातरम पर चर्चा हुई, जो गीत पूरे हमारे आजादी के आंदोलन का प्रेरणा गीत बना, वो वंदे मातरम की चर्चा का तृणमूल कांग्रेस विरोध कर रही है, क्योंकि उनकी वोट बैंक इससे नाराज हो रही है। ये बंगाल की जनता कभी सहन नहीं करेगी। एक जमाना था मित्रों कि भारत के जीडीपी में बंगाल का योगदान 10.5% था और तीसरे नंबर पर था। जीडीपी में योगदान की दृष्टि से हमारा बंगाल तीसरे नंबर पर था। तीसरे नंबर पर से सरक कर ये 49 साल में वो 22वें नंबर पर आ गया। अब नीचे कोई जगह ही नहीं बची। बंगाल का इतना आर्थिक पतन कभी नहीं हुआ है। ये कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। ममता जी, आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। हर प्रकार के उद्योग की शुरुआत एक जमाने में इस सुजलाम सुफलाम भूमि से हुआ था और इसी के आधार पर सोनार बांग्ला की परिकल्पना की जाती थी। वो बंगाल में आज भ्रष्टाचार, घुसपैठ और टोलबाजी के कारण सारी इंडस्ट्री वापिस जा रही है। केंद्र सरकार की योजनाएं लागू करने में
उनको अपनी वोट बैंक गंवाने का डर है। पीएम किसान देरी से लागू किया, बंगाल के किसानों का 10,000 करोड़ रुपया चला गया। आयुष्मान भारत आज तक लागू नहीं किया और बहुत आयुष्मान भारत से बहुत एक प्रकार से कमियां वाली स्वास्थ्य साथी की स्कीम लागू की है। मुझे बताइए, कोई बंगाल का नागरिक भारत में कहीं जाता है और बीमार पड़ गया, स्वास्थ्य साथी स्कीम उसको बाहर के अस्पताल में इलाज करवा पाएगी क्या? नहीं करवा पाएगी। क्या गुनाह किया है बंगाल के गरीबों ने? देश भर के गरीबों को 5 लाख तक की पूरे स्वास्थ्य की गारंटी मिल रही है। अरे कई राज्यों ने किया कि केंद्र 5 लाख दे रहा है, उन्होंने और 5 लाख जोड़ दिए। आप केंद्र के 5 लाख इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहते हो कि नरेंद्र मोदी से आपको डर है। डर तो ठीक ही है, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता बंगाल में दिन प्रतिदिन बढ़ती है, मगर इसके कारण गरीबों का आप नुकसान कर रही हो। वो बंगाल के गरीब जरूर। हिंसा और प्रतिशोध की राजनीति, पूरा देश ऐसी आशा करता था कि यहां से कम्युनिस्ट जाने के बाद हिंसा और प्रतिशोध की राजनीति समाप्त हो जाएगी, मगर हुआ उल्टा। इन्होंने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहला दिया। मित्रों, अब तक 300 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हैं। 21 के चुनाव के बाद लगभग 3,000 कार्यकर्ता विस्थापित बनकर आज भी अपने गांव में नहीं लौटे हैं। उनको दबाव बनाया जाता है कि आप तृणमूल का झंडा उठाओ तभी गांवों को रहने देंगे। क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? कोई व्यक्ति अपने किसी राजनीतिक दल में काम करना है, वो स्वतंत्र रूप से तय नहीं कर पाएगा। वो ममता जी मुख्यमंत्री की चैम्बर से तय करेगी क्या? ममता जी, जितना भी प्रताड़ना करना हो करो, बंगाल की जनता अब तय कर कर बैठी है। इन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को हर तरह से प्रताड़ित किया, यहां तक कि महिलाओं पर बलात्कार भी किए गए। मैं अपना रिपोर्ट नहीं दे रहा हूं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का रिपोर्ट है। इसका भी जवाब ममता जी को देना पड़ेगा। ममता जी ने सारी संवैधानिक औचित्य को समाप्त कर दिया। किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। कई राज्यों में हमारी सरकार नहीं, कहीं ऐसा व्यवहार नहीं होता। वंदे भारत ट्रेन देने प्रधानमंत्री आते हैं, ममता जी स्टेज पर नहीं जाती हैं। कई प्रकार के भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने हुए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने हुए भारत सरकार के डीओपीटी के रूल्स ये तोड़ देती है, मरोड़ देती है। डीजीपी और मुख्य सचिवों की अपॉइंटमेंट में मनमानी करती है। रिटायर्ड होने के बाद सलाहकार बनाकर प्रॉक्सी डीजीपी और प्रॉक्सी सीएस बैठाने का काम करती है। ये 34 साल कम्युनिस्टों का शासन और 15 साल टीएमसी का शासन, ये केंद्र विरोधी मानसिकता बंगाल की जनता में खड़ा कर हमारी संविधान की स्पिरिट थी, उस स्पिरिट का कंप्लीट इन्होंने अनादर करने का काम किया है। ममता बनर्जी के शासन में सिंडिकेट, तोलबाजी, कटमनी, न केवल वो सिस्टम को बढ़ावा दिया है, यहां कमाई करने का अधिकार एक ही व्यक्ति को है, भाईपों को है, और किसी को कमाई करने का अधिकार नहीं है। सब में हिस्सेदारी देनी पड़ती है। बंगाल एक जमाने में सब बात में सबसे पहले था। सबसे पहला मोटर कारखाना पश्चिम बंगाल में लगा। सबसे पहला पावर प्लांट 1887 में बंगाल में लगा। सबसे पहली कोयलरी बंगाल में आई। सबसे पहला स्टील प्लांट बंगाल में लगा। देश की सबसे पहली हाई राइज बिल्डिंग बंगाल में बनी। देश की सबसे पहली जूट मिल बंगाल में बनी। देश की पहली मेट्रो ट्रेन बंगाल में आई। एक ही शहर में 2 पोर्ट एक ही जगह है, बंगाल में है। और देश की सबसे पहली आधुनिक यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी बंगाल में बनी। और विश्व प्रसिद्ध विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी, जिसने भारतीय शिक्षा के कंसेप्ट को जमीन पर उतारा,
वो भी बंगाल में बनी। मगर ममता जी, आप गौरव मत करिएगा, इसमें से कुछ आपके समय में नहीं हुआ है। ये जो करने वाले थे उनके पूरे रिदम को, इनकी लय को, बंगाल की विकास की गति को तोड़ने का आप काम करें। बंगाल आज इंडस्ट्रियल रूप से कंप्लीटली बर्बाद हो चुका है और ये आपके शासन में ही हुआ है। आधा अधूरा तो कम्युनिस्ट बेचारे कर कर गए थे, आपने तो पूरा ही समाप्त कर दिया। सिंडिकेट राज, तालेबाजी, शत्रुतापूर्ण माहौल, इसके कारण 2011 से 25 के बीच में 7,000 से ज्यादा कंपनियां बंगाल छोड़कर बंगाल के बाहर चली गई। और मित्रों, ये बहुत बड़ा सेटबैक बंगाल के आर्थिक विकास के लिए है। मित्रों, बंगाल स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चट्टोपाध्याय, महर्षि अरविंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कवि गुरु टैगोर जैसे महापुरुषों की धरती है। यही धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमर शहीद खुदीराम बोस, वाघा जतीन, रविंद्रनाथ सन्याय, रास बिहारी बोस, मास्टर सुरेश सेन, प्रफुल्ल चाकी, वीणा दास, कल्पना दत्त, ये सभी ने देश की आजादी के लिए आहलेख जगाया था। यहीं पर कई सारे फिल्मकार मिले, संगीतकार मिले, चित्रकार मिले। इस भूमि ने कई सारे दुनिया को प्रभावित करने वाले संत भी दिए। वो बंगाल आज ऐसे कगार पर पहुंच गया है कि अगर एक घुसपैठ की बयार रोकी नहीं गई तो बंगाल का अस्तित्व भी खतरे में है। ऐसा स्पष्ट रूप से समाज जीवन को जानने वाले सभी लोग मानते हैं। और अंत में मैं बंगाल की जनता को फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि बंगाल के अस्तित्व पर तो घुसपैठिया संकट है ही है, बंगाल की संस्कृति पर एक घुसपैठिया संकट है ही है, परंतु अब ये संकट केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा है, पूरे देश तक ये संकट आगे बढ़ गया है। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है, आपने लंबे समय तक कांग्रेस को मौका दिया, 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी को मौका दिया, 15 साल तक ममता बनर्जी को मौका दिया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड नीचे 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 गिराने का है, अब इससे नीचे कोई जगह नहीं बची है। और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वो राज्य बीमारू राज्यों में से समृद्ध राज्य बनने की कगार में आगे बढ़े हैं। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हो रहा है। पूरे देश में भारत की संस्कृति, भारत के धर्म, भारत की भाषाएं मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, फल फूल रही है। बंगाल की जनता को मैं विनती करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम कवि गुरु की कल्पना का, विवेकानंद की कल्पना का, बंकिम बाबू की कल्पना का बंगाल बनाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे और निश्चित रूप से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो फिर से एक बार समग्र बंगाल की जनता को करबद्ध निवेदन में करना चाहता हूं कि बंगाल में हमें पूर्ण बहुमत दीजिए। बंगाल और पूरी भारत को सुरक्षित करने के लिए ये चुनाव में बाकी सारी चीजें छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करिए। धन्यवाद। कौन बोलते जाओ नाम भाई, आनंदबाजार कोई जल्दबाजी मत। सब कोई निकल पार्टी वाले मोबाइल
दादा मोबाइल ये करो सर एक मिनट अरे आप एदिকে যান না এদিকে যান ए मोबाइल এদিকে আসো सोयो ए मोबाइल आओ এইবার আসছি হুমায়ুন কবির মুর্শিদাবাদের একটা ছোট্ট সীমার মধ্যে যে বন্দী ছিল, যার যেখানে দাদাগিরি করতো সে হুমায়ুন কবির। হুমায়ুন কবির এখন নতুন দল করেছে, আর সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার কি জানে, হুমায়ুন কবির এখন বলছে সৌদি আরবে যাবে হজ করতে, রাজনীতি ছেড়ে দেবে। কিন্তু একটা প্রশ্ন, সেই বাবরি মসজিদ ভিত্তি স্থাপনের সময় যে কোটি কোটি টাকা এলো তার হিসাব কিন্তু হুমায়ুন বাবু আপনি সাধারণ মানুষকে দিয়ে যাবেন। কারণ বাবরি মসজিদ আপনাকে করতে বারণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার, সেই চিঠি আপনার কাছে এসেছে, বলেছে অন্য নামে করতে, মসজিদ করুন অন্য নামে করার জন্য, কিন্তু তার হিসাব দিয়ে তবেই কিন্তু সৌদি আরবে আপনি হজ করতে যাবেন। আমাদের প্রথম আলো বার্তার পর্দা থেকে আমি অমল চ্যাটার্জি বলছি, আর না হলে কিন্তু মানুষ আপনার বিচার করবে। আর আপনি শুধু তাই নয়, আপনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি অভিষেক ব্যানার্জির সাথে চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন। সেই চ্যালেঞ্জটা আমরা পুরো দর্শকদের দেখাবো যে আপনি কি বলেছেন। কারণ আপনি সৌদি আরবে যাবেন হজ করতে, সে যান, হজ করতে আপনি যান, কিন্তু হিসেবটা দিয়ে যাবেন। কোটি কোটি টাকা যে মানুষ মন থেকে হৃদয় থেকে আল্লাহকে বিশ্বাস করে যে টাকা অনুদান দিয়েছে তার হিসাব আপনাকে দিতে হবে। আজ বছরের প্রথম দিনেই বললাম, দেখুন সেই দৃশ্য আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি চলে গেছিল হুমায়ুন কবিরের কাছে। হুমায়ুন কবির কি বলল আমাদের পর্দায় সরাসরি শোনো। নমস্কার, শুভ সকাল। আমি হুমায়ুন কবির, যে ইউপির চেয়ারম্যান। আমি অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেসের পার্লামেন্টের দলনেতা সম্মানীয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলছি, আপনি আমার জন্য নিদান দিয়েছেন যে মসজিদ করলে রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে আমি যেন মসজিদ নিয়ে পড়ে থাকি। আমি আপনার কথা শিরোধার্য করব, মেনে নেব। আপনি আগে আপনার পিসিকে আপনার দলের চেয়ারম্যান পদ থেকে অবসর করান, অবসর নিতে বলুন, এবং আগামী 26-এর নির্বাচনে যেন নির্বাচনের কন্টেস্ট না করে বলুন। এবং ওই যে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরকে দীঘাতে নিয়ে এসছেন, দিয়ে ওই যে জগন্নাথ ধাম করেছেন, সেই জগন্নাথ ধামে ওখানে গিয়ে আপনার পিসিকে বলুন যে ওখানে ধর্মকর্ম নিয়ে উনি থাকবেন। তাহলে উনি যদি ওটা করেন, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, বাংলার মানুষকে কথা দিচ্ছি যে আমি শুধু বাবরি মসজিদ নিয়েই থাকব। আর আমার দল, আমি যে চেয়ারম্যান,
সেটা অন্য কাউকে দায়িত্ব দিয়ে আপনাদের দলগত বিরুদ্ধে আমরা রাজনীতি করব, আপনাদের ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য রাজনীতি করব। আর আপনার যদি এত সাহস থাকে, জনসংযোগ থাকে, বাংলার নেতা হিসাবে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে মানুষের প্রতি আপনার আত্মবিশ্বাস থাকে, তাহলে আগামী দিনে আপনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রজেক্ট ক্যান্ডিডেট হন, ভবানীপুরে বা নন্দীগ্রামে, যেখানে খুশি হন। বাংলার মানুষ আপনাকে নিশ্চয় যদি সমর্থন দেয় বা মেজরিটি দেয়, তাহলে আপনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন। আর এসব না করে আপনার পিসি মন্দির করে বেড়াবে, জগন্নাথ ধাম করে বেড়াবে, দুর্গায়ন করবে সরকারি টাকায়, হিডকোর টাকায়। এই 29 তারিখে আবার আপনারা 260 কোটি টাকার আপনার পিসির, ওটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি না, 30 হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের সম্পত্তি না। মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নিয়ে আপনি শুধু মন্দির করবেন, কার্নিভাল করবেন, দুর্গা পুজোর অনুদান দিবেন, শিলিগুড়িতে কোটি কোটি টাকার জায়গা সেখানে মন্দির করার জন্য দিবেন, আর আমাকে আপনি পরামর্শ দিচ্ছেন, নিদান দিচ্ছেন। আপনি আগে আমার এই বক্তব্যটা কার্যকরী করুন, আপনার পিসিকে রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়া করান, আগামী 26-এর বিধানসভা নির্বাচনে কন্টেস্ট থেকে বিরত রাখেন এবং জগন্নাথ ধামে পাঠিয়ে দেন, দীঘায়। তাহলে আমি কথা দিচ্ছি বাংলার মানুষের কাছে, আমি আগামী দিনে কোনো সিটে লড়াই করব না। আমার যে জেইউপি পার্টি, সেই পার্টি অন্য কাউকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব তুলে দিয়ে আমিও শুধু মসজিদ নিয়ে আর ওই সৌদি আরবে যাব, পবিত্র হজে গিয়ে হজ করে এসে আমি ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের হয়ে কাজ করব। পৃথিবীতে যে কটা দিন মহান আল্লাহ তাআলা আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন বা হায়াতে রাখেন। তাই আপনাকে আমি এই পরামর্শটা দিলাম। আপনার অনেক দিনের বাসনা যে আপনি পিসির পরে আপনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তা পিসিকে ভালোই ভালোই জগন্নাথ ধামে পাঠিয়ে দেন। যেদিন আপনি ঘোষণা করবেন, আপনার পিসি যেদিন অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান পদ ছেড়ে দিয়ে আর বাংলার মুখ্যমন্ত্রীতে বসবো না, কাজেই আমি আর ভোটে লড়বো না, এই ঘোষণা করবেন। আমি তার 24 ঘন্টার মধ্যে আমার জেইউপি চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে আসবো এবং আমার যে জেইউপি পার্টি, জনতা উন্নয়ন পার্টি, অন্য কারো হাতে দায়িত্ব দিয়ে আপনাদের সঙ্গে সরাসরি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। আর আপনি বাংলার মানুষের কাছে কত গ্রহণযোগ্য সেটা শুধু ভিসি করে বড় বড় কথা বলে কোনো দরকার নাই। আপনার পিসির বেলায় আপনি এক ধরনের, আর আমার বেলায় আপনি নিদান দিচ্ছেন, এটা বাংলার মানুষ আপনাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই কথা আপনি বলছেন না, সম্প্রীতি রাখার কথা বলছেন না। আপনাদের মধ্যে কত সংকীর্ণতা আছে সেটা আমি খুব ভালো করে জানি। আগামী দিনে আপনারা ঠিক জবাব পেয়ে যাবেন। নমস্কার। সামনে গঙ্গাসাগর মেলা, একদম বিরাট, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ গঙ্গা সেই স্নানে স্নান করতে আসে। ঠিক নির্দিষ্ট টাইমে প্রচুর সাধু সন্তরা আসেন, দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা চান করতে আসেন সে গঙ্গাসাগরে। আপনাদের দেখাচ্ছি গঙ্গাসাগরে প্রস্তুতি পর্ব একদম তুঙ্গে, কারণ ওখানকার যিনি কন্ট্রাক্টর আছেন সেই কন্ট্রাক্টর আমাদের প্রথম আলো বার্তার পর্দায় কি বলল সরাসরি শুনুন, তাই নয়, আমাদের প্রতিনিধি প্রতিটি সাধু সন্তদের কাছে ইতিমধ্যে সাধু সন্তরা এসে গেছে, তাদের কাছে আমাদের প্রতিনিধি, প্রথম আলো বার্তার পর্দার প্রতিনিধি কি বললে, তারা কি জানালো সাধু সন্ন্যাসীরা, সেই মহৎ সাধু সন্ন্যাসীরা, সরাসরি শুনুন আমাদের পর্দায়। রিপেয়ারিং এর কাজ চলছে, সবাই পুজো পাঠ দিচ্ছে। হ্যাঁ, এদিকেও দোকানপাট খোলা আছে। হ্যাঁ, এই অবস্থায়
এখন মোটামুটি প্রস্তুতির মুখে। এখন প্রস্তুতির মুখে এই বাঁশ টাস টাঙানো আছে, রং ফং হচ্ছে, কাজ করছেন, সব প্রস্তুতির মুখে। হ্যাঁ 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 কপিলমুনির আশ্রমে আমরা প্রবেশ করেছি। এইখানে হনুমানজি থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকে, সীতারামজি থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকে এসছেন। মন্দিরে পুজো দেওয়া হচ্ছে। এখানে কপিল মুনির ছবি আছে, প্রসাদ নিচ্ছেন, ফটো নিচ্ছেন মহারাজরা। महाराज जी सीताराम। सीताराम आप बताइए, आज तुलसी देवी का जन्मदिन है। आज तुलसी जी का जन्मदिन है। आज तुलसी जी का जन्म हुआ था। विष्णु भगवान के आशीर्वाद से तुलसी जी हमेशा शालिग्राम शिला पे विराजित होती हैं। ठीक ठीक। बाकी जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज, जय कपिल मुनि जी महाराज। হ্যাঁ কপিলমুনির আশ্রমে আমরা প্রবেশ করেছি। এইখানে হনুমানজি থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকে, সীতারামজি থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকে এসছেন। মন্দিরে পুজো দেওয়া হচ্ছে। এখানে কপিল মুনির ছবি আছে, প্রসাদ নিচ্ছেন, ফটো নিচ্ছেন মহারাজরা। महाराज जी सीताराम। सीताराम आप बताइए, आज तुलसी देवी का जन्मदिन है। आज तुलसी जी का जन्मदिन है। आज तुलसी जी का जन्म हुआ था। विष्णु भगवान के आशीर्वाद से तुलसी जी हमेशा शालिग्राम शिला पे विराजित होती हैं। ठीक ठीक। बाकी जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज, जय कपिल मुनि जी महाराज। যোগাশ্রমের মহারাজ জি, দেখতে একটু একটু ঘুরে দাঁড়ান মহারাজ। হ্যাঁ, ইনি হলেন আমাদের গঙ্গাসাগর কপিলকুটি সাংখ্য যোগাশ্রমের মহারাজজি, নরোত্তম মহারাজ। এক নামে সবাই চিনবেন, বড় আশ্রম বললে সবাই চিনবেন। হ্যাঁ, এখানে কপিল মুনির মন্দির পুজো হচ্ছে, সবাই এসেছে, এই চলছে। आपका नाम क्या है? प्रकाश गिरी महाराज। यहाँ से कितना साल से आ रहा है? यहाँ से हम आ रहे हैं 2008 से। 2008 साल से। ठीक 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 ठीक। ओके महाराज। नमस्ते जी। महाराज जी, आपको नाम क्या है? अर्जुन गिरी। अर्जुन गिरी। कितना साल से यहाँ से आ रहा है? अरे कई साल से हो गया। 23 साल हो गया। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आप গঙ্গাসাগর মেলা 2025 এবং 26। হ্যাঁ। 26-এর মেলার প্রায় 80% কাজ কমপ্লিট। আর সামনে 3-4 তারিখে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাগরে আসবেন, আর সেই সমস্ত পরিদর্শন করবেন। কবে আসছেন? 3-4 তারিখ। আচ্ছা, তারপর এসে দেখবে, আর সেই দেখার পরিদর্শন করবে। বাইরে যে সমস্ত যাত্রীরা আসে তাদের কোথায় সুবিধা অসুবিধা উনি খতিয়ে দেখার জন্যে প্রত্যেক বছর তিনি মেলাতে আসেন, এবং উনি এসে সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করবেন। এই হচ্ছে মোটামুটি মামতি মানুষের নেতৃত্ব। আর কি বলবো? আপনার নাম? আনন্দ মাইতি। বাড়ি? বাড়ি সাগরে। এই যে গঙ্গার ভাঙন শুরু হয়েছে, এটা কতদিন শুরু হয়েছে?
আজকের 18-19 থেকে লকডাউন থেকেই শুরু হয়েছে। লকডাউন থেকে শুরু হয়েছে। এই গঙ্গাটা কত দূরে ছিল? ছিল অনেকটা, আচ্ছা, তবু আনুমানিক আনুমানিক এখন থেকে প্রায় 1.5 কিলোমিটার। 1.5 কিলোমিটার। 1.5 কিলোমিটার। আচ্ছা, এখানে এই ভাঙনটা যে হচ্ছে সেটা এখানকার পুলিশ প্রশাসন সবাই জানেন? সবাই জানে। আচ্ছা, এবং আপনার আপনার নাম? আনন্দ মাইতি। আচ্ছা, আপনার ঠিকানা? এই সাগরদ্বীপ। গুড। এদিকে উত্তরে মন্দির দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর এই মন্দির থেকে এই পাশে পুজো আর্চার সব ডালা ফালা দেওয়া হয়, এই অবস্থা। আর এদিকে পুরো টোটাল ফাঁকা দেখা যাচ্ছে, সাগর। ঠিক আছে। হ্যাঁ, কপিলমুনির আশ্রমে আমরা প্রবেশ করেছি। এইখানে হনুমানজি থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকে, সীতারামজি থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকে এসছেন। মন্দিরে পুজো দেওয়া হচ্ছে। এখানে কপিল মুনির ছবি আছে, প্রসাদ নিচ্ছেন, ফটো নিচ্ছেন মহারাজরা। महाराज जी, सीताराम। सीताराम। आप बताइए, आज तुलसी देवी का जन्मदिन है। आज तुलसी जी का जन्मदिन है। आज तुलसी जी का जन्म हुआ था। विष्णु भगवान के आशीर्वाद से तुलसी जी हमेशा शालिग्राम शिला पे विराजित होती है। बाकी जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज, जय कपिल मुनि जी महाराज। এদিকে উত্তরে মন্দির দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর এই মন্দির থেকে এই পাশে পুজো আর্চার সব ডালা ফালা দেওয়া হয়, এই অবস্থা। আর এদিকে পুরো টোটাল ফাঁকা দেখা যাচ্ছে, সাগর। ঠিক আছে। महाराज जी, आपका नाम क्या है? गड़बड़पुरी। गड़बड़पुरी। आपको अखाड़ा कहाँ है? अभी अखाड़े में ही बैठे हैं। ये आगे से जूना से। जूना का। ठीक 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 ठीक। आशीर्वाद दीजिए। आनंद लो। जूना अखाड़ा। तो कितना साल से अब तो यहाँ से बढ़िया आश्रम है ना? हनुमान जी के हाथ। नहीं, कपिल बाबा कपिलानंद स्वामी। हाँ 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 हाँ। तो हनुमान जी भी वहीं। और उसको यहाँ से भंडारा है पौष संक्रांति को। हाँ, सबको साधु सन्यासी को भंडारा है, मालूम है? ठीक ठीक ठीक। वही भी आता है। ठीक ठीक ठीक। हम तो यहाँ से त्रिवेणी जाता है, कुम्भों से जाता है। त्रिवेणी हमें भी ले चलो आप। তাই? हैं? ঠিক 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 ঠিক। এবার আসছি আপনাদের, আমি নিয়ে যাচ্ছি একদম সেই
অনুকূল ঠাকুরের 138তম জন্মদিন। আমি আপনাদের সেখানে নিয়ে যাচ্ছি বছরের প্রথম দিনে। হ্যাঁ, সুন্দর জিনিস। অনুকূল ঠাকুরকে আমাদের প্রথম আলো বার্তার পর্দায় প্রথমে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে আমি সেই অনুকূল ঠাকুরের কাছে আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি 138তম জন্মদিন। আমি আসছি মূল পর্বে। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের 138তম জন্ম মহোৎসব উপলক্ষে গতকাল মালদা জেলার হরিদপুর ব্লকের বুলবুলচন্ডী গিরিজা সুন্দরী বিদ্যা মন্দির হাই স্কুল ময়দানে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সকাল থেকে অনুষ্ঠানস্থলে ভক্ত অনুগামীদের উপস্থিতিতে উৎসবের আবহাওয়া লক্ষ্য করা যায়। জন্ম মহোৎসব উপলক্ষে এই দিন সকালবেলা বুলবুলচন্ডী আর.এন. রয় গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি শিশুদের মধ্যে বসে আঁকা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়, যেখানে বহু শিশু অংশগ্রহণ করে। সারাদিন ব্যাপী নাম কীর্তন, প্রার্থনা, ধর্মীয় আলোচনার মধ্য দিয়ে মহোৎসব পালিত হচ্ছে। ভক্তদের জন্য ভোগ ভাণ্ডারের আয়োজন করা চলছে। শান্তি, ভ্রাতৃত্ব, মানব কল্যাণে বার্তা ছড়িয়ে দিতে এই মহোৎসবকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকা এক ভক্তিময় পরিবেশ মুখরিত হয়ে উঠল। হ্যাঁ, এইবার আপনাদের দেখাচ্ছি সেই অনুকূল চন্দ্রের 138তম জন্মদিনে ভক্তদের ভিড় আসলে পড়ল। শুধু তাই না, পরিবেশটা একটা ভক্তিময় হয়ে উঠল। আজ বছরের প্রথম দিনে সে অনুকূল ঠাকুরের সেই দৃশ্য দেখাচ্ছে আমাদের চ্যানেলের পর্দায়। দেখতে থাকুন। জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের 138তম জন্ম মহোৎসব বুলবুলচন্ডী গিরিজা সুন্দরী বিদ্যা মন্দিরের ময়দানে আজকে সারাদিন ব্যাপী উদযাপিত হচ্ছে। সকাল অর্থাৎ ব্রাহ্ম মুহূর্ত থেকেই আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। নহবত, বেদ মাঙ্গলিকী পাঠ এবং প্রার্থনা, এরপরে উষা কীর্তন এবং আমাদের বাণী পাঠ হয়েছে, প্রার্থনা হয়েছে। তারপরে আমাদের হাসপাতালে রোগীদের ফল বিতরণ হয়েছে। সারাদিন ব্যাপী অঙ্কন প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, বাচ্চাদের শিশুদের নৃত্য এবং সঙ্গীতাঞ্জলির অনুষ্ঠান আছে, সাধারণ সভা আছে। আমাদের হবিবপুর ব্লক এই অঞ্চলের সমস্ত আপামর জনবাসী সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ আমাদের পাশে আছেন। সবাইকে নিয়ে আমরা, পরম প্রেমময়কে নিয়ে আমরা আজকে উৎসবে মেতে উঠেছি। আজকে এই উৎসবের পরিবেশ সুন্দরভাবে আমাদের এই এলাকায় একটা সাড়া ফেলেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে দর্শনার্থীরা এবং গুরু ভাইরা, দাদারা এবং মায়েরা অংশগ্রহণ করছেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। সব মিলিয়ে একটা জেলা উৎসবের মতন একটা পর্যায়ে নিয়েছে। ফলে এরপরে আমাদের যে কার্যক্রম আছে, সাধারণ সভা এবং প্রার্থনা আছে। প্রার্থনার পরে বস্ত্র বিতরণ এবং পুরস্কার বিতরণী আছে। তারপরে বহিরাগত শিল্পীদের একটা অনুষ্ঠান আছে। সব মিলিয়ে আজকের কার্যক্রম সারাদিন ব্যাপী মহাসমারোহে উদযাপিত হবে। আর সমস্ত ভক্তবৃন্দের এবং সৎসঙ্গী গুরু ভাইদের, মায়েদের সবার জন্য, সর্বসাধারণের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা আছে। সবাই প্রসাদ নেবেন এবং আমাদের ঠাকুরের এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করবেন, এই আশা রাখছি। সবাইকে জয়গুরু জানাচ্ছি। গুরু পরম দৈবতম গুরু পরতর নাস্তি তস্मै শ্রী গুরুবে বইগুলো কি হলো? বইগুলো জগৎ লক্ষ্মী কথায় আজ করিব বর্ণন। শোনো শোনো তোমরা, শোনো শোনো তোমরা, শোনো দিয়া মন। জগৎ লক্ষ্মী কথায় আজ করিব
আছে ডাক্তারবাবু হ্যাঁ দিয়েছে রাজা দিয়েছে তাহলে দেখলেন এসআইআরকে আমরা কিন্তু 2025-এও ছেড়ে দিইনি আর 2026 ছাড়বো না, কারণ এসআইআর এর জন্য অন্ধ বৃদ্ধা মাকে আর অন্ধ তার ছেলেকেও কিন্তু নিস্তার দিল না এসআইআর। নির্বাচন কমিশন, আমরা সেই নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা অন্তত যারা আছেন একটা ডিসিশন নিন যে 80 বছরের ওপরে মানুষদের বাড়িতে গিয়ে হিয়ারিং হবে এবং যত তাড়াতাড়ি করতে পারেন আপনাদের আশীর্বাদ করবে সেই বৃদ্ধ বৃদ্ধারা। দেখতে থাকুন আজকের প্রতিবেদনে বছরের প্রথম দিনে। আমি অমর চ্যাটার্জি।